पिछले सत्र में when the parliament was in session, the India Alliance parties deliberated on the recently passed Digital Data Protection Act. If you would remember, this Digital Data Protection Act had a small history to which I would briefly go into. That there was a JPC set up, an extensive report was presented, and subsequently the government, as it has the habit, when it is going to pass the bills, brings certain amendments which have fundamentally changed the nature of the JPC report. So when this bill, the Digital Data Protection Act, was passed, it was done when the entire country was witness to the no confidence motion in Parliament in the year 2023, which was brought in the context of Manipur. And therefore, this important bill, which should have been deliberated upon, discussed upon, the government passed it. And since then, we have been studying the various implications of the Digital Data Protection Act. And as we have understood it clearly, the recent amendments have a draconian impact on the rights of citizens and the freedom of the press. Subsequently, in the recent Lok Sabha, civil society also reached out to various India Alliance parties, leaders of group of civil society activists, RTI activists, privacy activists, also reached out to LOP Shri Rahul Gandhi ji. And then it was subsequently decided कि हम सब मिलकर जो महत्वपूर्ण चिंताएं नागरिक समाज ने व्यक्त की है, उसको हम एक कलेक्टिव पेटिशन के द्वारा मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी को बताएंगे. और हमने एक जॉइंट पिटिशन हमने बनाई है, जिसका मैं थोड़ा सा विवरण मैं दूंगा, एंड देन आई विल आस्क माय कॉलीग्स टू गो फर्दर इनटू डिटेल. बट एक जॉइंट पिटिशन जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने भारत के पार्लियामेंट में पास हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धज्जियां उड़ा दी. It has devastated another act passed by the Parliament, which is the Right to Information Act. There is a particular section in the Right to Information Act. It is called Section 8(1), जिसमें ये कहा गया है कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में ऐसी कोई जानकारी मांगी गई है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई संपर्क नहीं है, तो ऐसी सूचना देना अनिवार्य नहीं है. लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर आपको देना पड़ेगा. तो अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, उसमें एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, सेक्शन 44(3), which is amending section 8(1)(j of the RTI Act,
and now it says nothing, notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to any citizen information which relates to personal information. बाकी जो चीज़ें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो बातें हैं, जो कार्व आउट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो पूरा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली पास हो उसको काट दिया है। तो कल अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में जो विभिन्न जो पुल बनाए जा रहे हैं, पुल टूटे जा रहे हैं, ये पुल अधिकारियों ने किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्या सारे पुल की ठेका मिला हुआ है। तो आज जो जानकारी आपका अधिकार है, जो सूचना जो अधिकार है, उस अधिकार को आज इस छल के द्वारा उस अधिकार को नागरिकों से छीना गया है। वेरी सरप्टिशियसली, maliciously and mischievously, the right of citizens to information has been snatched by the recent Digital Data Protection Act. तो इस बिल पर सुझाव ये है कि we urge you, we are requesting the Minister of Information Technology, we urge you to repeal Section 44(3) of the Digital Personal Data Protection Act. और ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन पर किन महान हस्तियों का, नेताओं का हस्ताक्षर और समर्थन है? आदरणीय राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का, बालू जी का, जॉन बिटर्स जी का, विभिन्न हमारे जो समर्थक करने वाले जो दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना यूपीटी हो, विभिन्न दलों के साथ हमने विचार विमर्श कर हमने सोचा एक जल्द से जल्द एन इमीडिएट एंड अर्जेंट एक्शन मस्ट बी टेकन, एंड अ जॉइंट पिटिशन was circulated because the parliament was adjourned. Therefore, we got a representation of the India Alliance, and we are still in talks with others. But right now, we have close to 120, 130 signatures on this, with some very eminent voices of the opposition. विरोधी दलों के बहुत अहम नेताओं की आवाज़ और उनका हस्ताक्षर इस पिटीशन पर है। तो बहुत ही आज कल के बीच में ये हम मंत्रालय में भेजेंगे और हम आशा करेंगे कि सरकार इस पर गंभीर मंथन करेगी और जो हमारा परामर्श एडवाइस है कि सेक्शन 44(3) को रिपील करना, वो करेगी। वो इससे करने से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के मूल जो बिल है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जो आत्मा है उसको हम बचा पाएंगे। बाय रिपीलिंग दिस, द फंडामेंटल नेचर ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विल रिमेन इंटैक्ट, बट द सोल ऑफ द RTI एक्ट will be protected. And I'm glad that the opposition parties on this issue have come together. I want to thank all the leaders of the India Alliance opposition parties. Thankful to the MPs for having come down here. I only want to say that this is our view of democracy, that citizens have rights and government has a duty to uphold these rights. हमारा सोच ये है कि नागरिकों के पास अधिकार है और सरकार का कर्तव्य बनता है उन अधिकारों को संरक्षण करना। लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार का नजरिया उल्टा है। उनको लगता है कि सारे अधिकार सरकार के पास है क्योंकि वो निर्वाचन जीत के आए हैं। The BJP thinks that them being elected gives them all the rights and citizens has no rights. Now citizens have the duty to follow what the government has ordered them to do so. अमित शाह जी कहते नहीं पार्लियामेंट के मानना ही पड़ेगा। अरे अधिकार हैं
नागरिकों के, हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों को और सशक्त करें, संविधान के अनुसार कानून बनाएं, पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए कानूनों को हम अपहोल्ड करें। और इनका ये है कि माइट इज राइट, ब्रूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट्स। एक चौतरफा हमला है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बन गए हैं, जिस माध्यम के द्वारा आरटीआई एक्ट से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थ्राइव कर रही है। वरना आप जान रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है किस तरीके से हर तरीके से कोलैप्स कर दी गई है। स्पाइलेस कहने में मुझे कोई 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पर ये जो चौतरफा हमला इस बिल के माध्यम से हो रहा है, वो आप सबकी जानकारी में लाना और आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आरटीआई एक्ट के बारे में संदर्भ में उन्होंने बताया गौरव जी ने कि किस तरीके से आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने का काम हो रहा है। और मैं सरप्राइज हूँ, कल ही आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, वो आधार की टीम से बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे एक न्यू लॉ ड्राफ्ट करिए जो कि बिल्कुल अलाइनमेंट में हो विद द आरटीआई एक्ट का न्यू लॉ लाइन, जिससे वो अलाइनमेंट में आए। तो यानी आप बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आप रोड टू इग्नोरेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं चलेगा, तो ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना हमने किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे राज्यों में जो भ्रष्टाचार की बातें निकली हैं वो आरटीआई के माध्यम से ही निकली हैं। उसी पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो डीपीडीपी एक्ट था जो 2019 में पहले आया था, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। 2021 में भी जो लाए थे जेपीसी के बाद, उसमें भी ये प्रावधान नहीं था। 2023 में अपनी मनमानी कर इन लोगों ने इस प्रावधान को लाए हैं, जिससे आरटीआई एक्ट को बिल्कुल नल एंड वॉइड करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी आरटीआई कानून तो होगा, पर जो वेपन है आपके हाथ में, जो एक हथियार है आपके हाथ में, वो खत्म कर देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं, और शुरुआत में ही मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं हम, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई भी अगर डेटा चाहिए, आपको डेटा फिनिशरी बना देंगे। और आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको अकाउंटेबल बना देंगे। और उसमें फिर फीस भी लगेगी, वो भी होंगे, फाइन्स भी लगेंगे, जो कि 200 करोड़ तक जा रहे हैं, 500 करोड़ तक भी जाने का हो सकता है। और जो वर्स्ट पार्ट इज कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनेगा वो सेंट्रलाइज्ड इन नेचर होगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं है। जैसे अगर तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, वहाँ की पॉपुलेशन अलग है, तो उनको भी उसी के कमांड में ले आया जाएगा, सेंटर के कमांड में। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले हैं, मराठी पर्सनल डेटा है, उसको भी सेंटर के कमांड में ला रहे हैं। कौन चेयरमैन बनेगा, कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, क्या उनकी सैलरीज होंगी, क्या उनके अलाउंसेस होंगे, क्या उन पे एक्शन लिया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। तो ये किस तरीके से फ्री एंड फेयर है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये भी पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कौन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। प्राइवेट एंटिटीज भी, अगर हम प्राइवेट एंटिटीज से भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो भी उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हम लगातार देख रहे हैं कि आरटीआई का पीएम केयर्स को आरटीआई से हटा दिया। कोई भी चीज जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, आरटीआई से हटा देते हैं। अब ये करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, सिटीजन्स एम्पावर्ड एनलाइटेंड सिटीजन्स हो, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उसको भी खत्म करने का काम है। तो मैं आप सबसे मेरी यही अपील होगी कि आप सबके माध्यम से हम सब इस आवाज को बुलंद करें कि ये जो डीपीडीपी एक्ट है अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन से पहले उसमें ये जो भी हमारी चेंजेस हैं, जो हमने लेटर के माध्यम से की हैं, उसमें ये बदलाव लाया जाए, सो दैट हमारे जो पावर्स हैं, सिटीजन के जो पावर है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जो पावर्स हैं, जर्नलिज्म के जो पावर्स हैं, फ्रीडम के प्रेस फ्रीडम के जो पावर्स हैं, उसको और मिट्टी में ना मिलाया जाए।